Hello friends, yesterday we went through the introductory part of the lesson heredity and evolution. Okay, so I gave you some homework. I'm sure that you might have completed that homework, and today let us start a further lesson. I want to tell you that this textbook of 10th standard science 2 have too many printing mistakes, and time to time I will tell you about that mistakes and correct that mistakes. So you have to pay attention towards the book lines. आपके इस 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको करेक्ट करना है. मैं आपको टाइम टू टाइम उस मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी और उसको करेक्ट भी करने के लिए बताऊंगी. तो आपको किताब में या बुक में कंप्लीटली ध्यान देना है, लाइंस को प्रॉपरली रीड करना है, मैं पढ़ाते वक्त भी प्रॉपर अटेंशन देना है. ओके, सो ओपन पेज नंबर 1, lesson number 1, heredity and evolution. Let us go through this lesson. First topic of this lesson is heredity and hereditary changes. This topic deals with history of genetics. So first topic is displayed on your screen. I am going to read that topic. You also put fingers on the line and read the topic along with me. Okay, you know that heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. John Gregor Mendel is pioneer of modern genetics. Around the period of time, it took a long time for him to understand the conclusions of this research about heredity. In 1901, the reasons behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed the paired chromosomes in the cells of grasshopper. Until then, it was not known to anyone. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes, through which 1944 trio of scientists Ostwald, Avery, Maclean McCarthy and Colin MacLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as genetic material. In 1961, the French geneticists Francois Jacob and Jacques Monod proposed the model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic इंजीनियरिंग. अभी जो मैंने लाइंस रीड की है वो पूरी लाइंस मतलब मिस्टेक्स के साथ में है. अभी हम इसमें की मिस्टेक्स पहले करेक्ट करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट लाइन, यू नो दैट हियर एंड डाइटी, ऐसे दो वर्ड आपको दिखते हैं तो वो हियर एंड डाइटी नहीं है. आगे अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स, हमने पढ़ा हुआ है. इट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी. तो वो वर्ड को तुम लोगों को एक करना है और उसको HEREDITY हेरिडिटी ऐसे एक जगह पे करना है. ओके, सो ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन. सेकेंड, जॉन ग्रिगोर मेंडल. यहाँ पे जो मेंडल का नाम है वो एक्चुअली ग्रिगोर जॉन मेंडल ऐसा है, लेकिन यहाँ पे जॉन पहले दिया हुआ है, ग्रिगोर बाद में दिया हुआ है. उसको आपको करेक्ट करना है. ग्रिगोर जॉन मेंडल इज पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ओके, नेक्स्ट है अराउंड द पीरियड ऑफ 1886. इतने जो वर्ड्स है अराउंड द पीरियड ऑफ 1886, ये पूरे आपको कट करना है. आपकी लाइन स्टार्ट होगी इट टुक अ लॉन्ग टाइम, इसके बाद आता है फॉर हिम. ये फॉर हिम वर्ड भी यहाँ से
कट करना है. सो ये हो जाएगा अभी. इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी. ओके. In 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to mutational theory of Hugo de Vries. ये मैं आपको पूरा बॉक्स करके कंपैरेटिवली बताने वाली हूँ. पहले हम मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं. मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर एंड सूटॉन ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एंड वर्ड गलत है, आपको एंड कट करना है. अब ये हो जाता है वॉल्टर सूटॉन. ओके. नेक्स्ट आपको नीचे की लाइन, ये इस पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड एवरी मैकलिन मैककार्थी. ये मैकलिन मैककार्थी का जो स्पेलिंग है उसमें से आपको CARTH को कट करना है. तो अब ये स्पेलिंग हो जाता है MCCARTY. ओके. ये यहाँ तक इतनी मिस्टेक्स है. और एक लास्ट मिस्टेक है मोनाड, MONAD जो स्पेलिंग है उसको आपको करेक्ट करना है MONOD. इतनी मिस्टेक्स यहाँ पे है, इसको करेक्ट करना है. ओके. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस पैराग्राफ. ओके. सो स्टूडेंट्स, look at the screen. One table is displayed on your screen showing the history of genetics. This complete paragraph is included in this table, so you have to pay attention. यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसमें आपको ईयर, साइंटिस्ट का नेम, स्टडी टॉपिक, उन्होंने कौन सा टॉपिक स्टडी किया है, एंड उन्होंने क्या डिस्कवरी की है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उनके फील्ड में, वो दिखाया हुआ है. सो इन द ईयर 1886 ग्रिगोर जॉन मेंडेल, करेक्टेड नेम ग्रिगोर जॉन मेंडेल. कौन थे ये थे फादर ऑफ जेनेटिक्स. लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ही इज़ द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. इनहेरिटेंस हमने लास्ट ईयर देखा हुआ है. मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस मेंडेल के पढ़े हुए हैं आप लोगों ने. सो इन्होंने क्या किया था? ही परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओवर द पी प्लांट टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में किस टाइप से इनहेरिट होते हैं, उनका इनहेरिटेंस कैसा है, ये दिखाने के लिए उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, एंड उसके थ्रू उन्होंने इनहेरिटेंस के प्रोसेस को अपने तक पहुंचाया है. ओके. नेक्स्ट है इन द ईयर 1901 ह्यूगो डी व्रीज म्यूटेशनल थ्योरी. उन्होंने इस टॉपिक पे स्टडी किया है. व्हाट इज़ म्यूटेशन नाउ? व्हाट इज़ म्यूटेशन? हमने पढ़ा है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट म्यूटेशन. म्यूटेशन इज़ अ सडन चेंज. मतलब एक जनरेशन में कुछ अलग और उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंज एग्जैक्टली दिखाई देता है वो होता है म्यूटेशन. एंड रीजन्स बिहाइंड द सडन चेंजेस. उन्होंने क्या डिस्कवर किया है कि ऐसे सडन चेंजेस के पीछे ऐसे कौन से रीजन्स है जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे चेंजेस आते हैं. ये किया किसने डिस्कवर? ह्यूगो डी व्रीज इन द ईयर 1901. नेक्स्ट है 1902 वॉल्टर सूटॉन, करेक्टेड वर्ड एंड खोड़ दो. वॉल्टर सूटॉन स्टडी ऑफ क्रोमोजोम्स. इन्होंने क्रोमोजोम्स की स्टडी की. इनको फर्स्ट टाइम कहाँ पता चला? जो ग्रास हॉपर है उनकी सेल्स में जब इन्होंने उनकी सेल्स की पढ़ाई की तो पता चला कि क्रोमोजोम्स पेयर्ड होते हैं. मतलब दो क्रोमोजोम्स साथ में. क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं? पेयर्ड क्रोमोजोम्स होते हैं. नेक्स्ट इन द ईयर 1944 ओस्टवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्थी एंड कोलिन मैक्लियोड. इन्होंने क्या किया? डीएनए को स्टडी किया एंड ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए.
मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास डीएनए के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट वायरसेस। मतलब वायरसेस हैव आरएनए, सम वायरसेस हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए और आरएनए इनका डिफरेंस और आरएनए के टाइप्स हमको आगे पढ़ना है। अभी आप ये ध्यान में रखो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एक्सेप्ट वायरसेस। इन द ईयर 1961 फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है ये भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल, ये उन्होंने डिस्कवर किया है। किसने? फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड। तो यहाँ पे जो भी डिस्कवरी है, जो भी हिस्ट्री है रिलेटेड टू जेनेटिक्स, यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो भी दिया हुआ है ये कंप्लीट टेबल में यहाँ पे एक जगह पे सेग्रीगेट किया हुआ है। आप उसको टेबल को स्क्रीनशॉट निकालकर अच्छे से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस नो दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रोटीन ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, ये सबको पता है ना। एंड जीन्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स। मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होते हैं, हम बोलते हैं ना, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। सो जीन्स आर नथिंग बट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स which are responsible for different characteristics to be expressed in next generation। मतलब प्रोटीन्स दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस होते हैं जीन्स के थ्रू, तो जीन्स क्या है? प्रोटीन्स है। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कवर होने के बाद में क्या क्या हुआ कि जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए वाज अंडरस्टूड। जो जेनेटिक कोड्स थे ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में, जो हम लेसन में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ आप ये बात ध्यान में रखो कि जेनेटिक कोड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी करता है एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स बनते हैं। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कवर हुआ तो उसके बाद ये जेनेटिक कोड्स जो हिडन थे डीएनए में वो हमको पता चलने लगे, मतलब दे वॉज अंडरस्टूड। देन दूसरा क्या हुआ? फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वॉज डेवलप्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग का फील्ड डेवलप्ड हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिकॉम्बिनेशन होता है, जो हम जीन्स में हेराफेरी करते हैं और हेराफेरी करने के बाद जो नया कुछ बन के आता है, वो सब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तीसरा है एमर्जेंस ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट का मतलब रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक कोड्स का रिकॉम्बिनेशन करके हमको जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक हमको होना है वो कैरेक्टरिस्टिक को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हैं और उनके अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एमर्जेंस हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी यूजफुल फॉर? हमने जो अभी हेरिडिटी पढ़ा, तो ये साइंस हमको कैसे यूजफुल है, तो ये हम देखेंगे। पहला है डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर हम लोगों ने डिफरेंट हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में फिर से हम डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो ये जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है, इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमको ये जो साइंस है हेरिडिटी का, ये बहुत यूज़फुल होता है। एंड नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स।
पहले जो मानना था कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स थे उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, बस वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स पास ऑन होते थे और फिर वैसे ही आगे चल के वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते थे। लेकिन आज ये पॉसिबल है कि अगर हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस हुआ तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करके, मतलब जो इनक्यूरेबल हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं उसको ट्रीट करके अच्छा भी किया जा सकता है। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। यहाँ पे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होना ही नहीं, मतलब उसको प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऑल ऑफ यू नो दैट। सो प्रिवेंशन अगर किया तो आगे वो डिसऑर्डर आगे वाली जनरेशन में पास ही नहीं होगा। तो ये प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो जीन्स है इसके लिए, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के लिए जो जीन्स होते हैं उसको पहले ही रिमूव करके उसको नेक्स्ट जनरेशन में जाने से बचा सकते हैं। सो ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अभी जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, जो एनिमल्स का प्रोडक्शन है, ये फील्ड में बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ हमको देखने को मिलती है। अब हाइब्रिड वैरायटीज़ क्या होती है? हाइब्रिड वैरायटीज़ ऐसी होती है कि कोई भी जो दो वैरायटीज़ है उसके अंदर जो डिफरेंट यूज़फुल जीन्स है उनका सेग्रीगेशन करके एक नई तीसरी काइंड की नई वैरायटी जिनके पास बहुत से अच्छे वाले कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र किए गए हैं, उसकी वजह से खेती में जो अनाज है उसका यील्ड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसे हैं जो पोल्ट्री एनिमल्स है उसमें भी आप हाइब्रिड वैरायटीज़ के एनिमल्स देख सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें हाई यील्डिंग, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, वेदर रेजिस्टेंस, ऐसी वैरायटीज़ अपने को देखने को मिल सकती है। पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज़, जिसकी वजह से प्रोडक्शन यील्ड क्रॉप प्लांट्स का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से जो डिफरेंट माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स 4 टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यूजेस ऑफ दिस माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस जो है बहुत सारे, जैसे वाइन प्रोडक्शन है, मेडिसिनल फील्ड में है, या बहुत सारी बेकरी फील्ड्स में है, बहुत सारी फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट यूजेस है। वो यूजेस ओनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से आज हमको पता चले हैं। एंड ये सब यूजेस हमको साइंस ऑफ हेरिडिटी की स्टडी करने की वजह से पता चले हैं। यहाँ पे मैंने ये जो 5 पॉइंट है, पूरे 5 पॉइंट को आप कैसे ध्यान में रखोगे वो दिखाया हुआ है। यूजेस ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड उसको 5 एरोज करके डिफरेंट उसके यूजेस दिखाए हुए हैं, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव फिनिश्ड the first paragraph or first topic of the lesson, heredity and hereditary changes. So the first 2 paragraphs are concerning with the history of genetics, which we have studied in the form of table, and the third paragraph is showing uses of science of heredity, which we have studied in detail. You have to prepare your notes and you have to draw the table of history of genetics, and you have to write the usefulness of the science of heredity. These 2 things are homework for you and you have to study at home. Stay home, stay safe. Thank you.